Hello students, we were on applications of derivatives and we have already started with maxima and minima. Today we'll be seeing few more sums of maxima and minima and we are looking at the word problems. We were on exercise number 2.4, so let's continue with exercise number 2.4. Let's take a look at our examples of exercise 2.4. So here today we are going to start with the word problems. Up to sum number 13 we have completed in the previous class. So today we are starting with sum number 14. Now here, as I told you last time, we have already seen what are the steps of maxima and minima. So very first step, we need to find out the function fx. Once you get the function fx, the remaining part will remain the same for almost all the sums. So let's start with sum number 14 there. Sum number 14 is, the sum is, find the largest size of a rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit so that two vertices lie on the diameter. So let's see how we are supposed to do this. So let's look at the figure first. Now here what is given to us? We want to find out the largest size of a rectangle. So we want the size of the rectangle. And how is this rectangle? ये rectangle कैसे दिया है? तो ये rectangle एक semicircle के अंदर है and whose radius is given as 1 unit. Okay, and it is also given to us that the two vertices lie on the diameter. So let's look at the figure. So suppose you are given a semicircle, एक semicircle दिया हुआ है. Suppose this is a semicircle given to us. Okay, and you are given that, suppose this is the origin, so let us call the origin as O, and you are given that there are 2 points, 2 vertices on this, you can say the diameter. So diameter हमारा ये diameter है, this is our diameter, and on this diameter you are given that 2 points are lying. Here we have taken a point A, we have taken a point B. अब हमें चाहिए एक रेक्टेंगल. सो लेट्स कंप्लीट दिस रेक्टेंगल. तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल. सो हियर इज द रेक्टेंगल. अब हमें चाहिए है व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल. तो हम कंसीडर करते हैं कि इसका जो लेंथ है वो x है और इसका जो ब्रेथ है वो है y है. We have taken this as A, B. So here we have the vertex C, we have a vertex D over here. Now what we are going to do is we are going to just join this C with O. तो हम ज्वाइन कर रहे हैं O को C से and we are joining this also, right? Now if you look at this particular diagram, तो अगर हम देखते हैं, if you look at this one, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सो देयर आर 2 राइट एंगल ट्रायंगल. एंड नाउ हियर इफ यू लुक एट दिस OC, OC जो है वो एक रेडियस है और OD भी रेडियस है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेडियस बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस रेडियस. तो हमारे पास OC रेडियस है, हमारे पास OD रेडियस है. अब हमारे पास और क्या है? वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज x वैल्यू एंड वॉट इज द y वैल्यू व्हेन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. हमें लार्जेस्ट साइज का चाहिए है. तो हमें दिया है कि इसका जो एरिया है रेक्टेंगल का वो मैक्सिमम होना चाहिए. सो लेट अस राइट डाउन व्हाट ऑल टर्म्स वी हैव टेकन. सो वी हैव टेकन हियर लेट A, B, C, D be the rectangle that is inscribed in the semicircle of radius 1 unit. So radius हमें दिया है 1 unit. Now what else is given to us? We are also given that 2 vertices lie on the diameter.
तो हमने दो वर्टेक्स कौन सा लिया है, ए लिया है और बी लिया है. सो विल राइट डाउन दैट टर्म्स ओवर हियर such that vertices A and B lie on the diameter. Okay, so we have written what we have taken. अब इसके बाद हमने क्या कंसिडर किया था, हमने कंसिडर किया था जो लेंथ है ए बी का लेंथ हमने कंसिडर किया था x, और हमने बी सी का लेंथ ब्रेड जो है ये रेक्टेंगल का वो कंसिडर किया था y. सो लेट अस राइट डाउन दैट ऑल्सो. सो लेट वी हैव कंसिडर ए बी इज इक्वल टू x. अब ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी को, सो यू कैन से दैट इज आल्सो द वैल्यू ऑफ डीसी. नेक्स्ट वी आर आल्सो गिवन दैट so we are given that we have also taken this length BC is equal to y. तो हम लिखते हैं BC is also equal to y and BC जो है वो parallel है to AD, so we'll write AD is also y, right? And now what we have done is we have taken O as the center of the semicircle. फिर हमें मिला था OC and OD, so we'll write down about that also. So let us consider, let O be the center of the semicircle so we have taken O is the center of the semicircle. We have joined, हमने join किया है, join OC and OD. Okay, and then we get that OC and OD are radius. तो अगर ये रेडियस है तो रेडियस के बारे में हमें क्या पता है, रेडियस वी हैव टेकन इट एज 1 यूनिट. सो देयरफॉर यू कैन से दैट OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 1 बिकॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1. तो इसका वैल्यू हमें मिल गया. Now next thing, now what we are also having over here, now if you look at this triangle, अब अगर हम ये triangle देखते हैं OBC and you take the triangle as OAD, तो इसमें हमें पता है ये साइड और ये साइड हमें सेम मिला. देन वी हैव गॉट दैट दिस इज द राइट एंगल, ये दोनों का भी राइट एंगल है. एंड वी कैन से ओ अगर हमारा सेंटर पॉइंट है एंड इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम तो हमें पता है कि दिस साइड इज आल्सो इक्वल टू दिस साइड. सो हमें मिलता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. सो लेट्स राइट इट डाउन. सो देन वी कैन आल्सो से ए डी इज इक्वल टू, we know that AD is equal to BC. Then we also know that angle A is equal to angle B and both of them are nothing but right angle, so they are 90 degree. And therefore we can say that OA must be equal to OB. Now let's look at the figure. हमारे पास है AB. AB का वैल्यू कितना हमने लिया है, X लिया है. तो हम लिख सकते हैं OB is nothing but OB is half times AB और AB का वैल्यू तो हमने लिया हुआ है X. So we can say that OB is equal to 1/2 times X, that is X/2. अब हमें OB का वैल्यू मिल गया. Now let's look at the triangle. हम देख रहे हैं only the triangle OBC. So if you look at this triangle, in triangle OBC we can say this is a right angle triangle. तो अगर ये right angle triangle है तो हम लिख सकते हैं OB square plus BC square is equal to OC square. अब OC का वैल्यू हमारे पास है 1, OB का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है और BC का वैल्यू हमने कितना लिया है, BC का वैल्यू हमने लिया है y. So let's put the values over here. So therefore we can say this value is
x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू हमने लिया है y, सो दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें मिला यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, सो वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। लेट्स टेक द एलसीएम ऑन दैट साइड, सो हमें मिलता है y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन 4 टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया y स्क्वायर का वैल्यू। अब हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल चाहिए। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ हमारे पास है x और ब्रेथ हमारे पास है y, तो हमें सिर्फ y की वैल्यू की जरूरत है, y स्क्वायर नहीं चाहिए। सो विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो दैट विल गिव अस y इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाता है, हियर यू गेट दिस इज 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास है y का वैल्यू। Now let us consider, let area of rectangle, let us consider this is say is equal to we know the value is equal to x into y, so let's write this as x into y। so y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, so this is x multiply by 1 upon 2 times root of 4 minus x square। अब एक काम करते हैं, वी डोंट वांट दिस x आउटसाइड, तो इसको हम रूट के अंदर ले लेते हैं। सो दिस वैल्यू इज 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ x, रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस वैल्यू इज 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। अब अगर आप ये फंक्शन देखते हो, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फंक्शन, द होल फंक्शन इज इन x, ये पूरा x में मिल गया है। सो लेट अस कॉल दिस वैल्यू एज, लेट दिस वैल्यू बी f ऑफ x, क्योंकि x में पूरा फंक्शन है। सो वी आर कंसिडरिंग दिस एज fx। अब हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जहां पे हमें मिल गया व्हाट इज द फंक्शन fx। अब fx के बाद के स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे, विल फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, विल फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड देन विल कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस। सो लेट्स सी, हमारे पास fx है, विल डिफरेंशिएट द टर्म, तो हमें मिल जाता है देयरफॉर वी कैन से f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ fx चाहिए है। 1 अपॉन 2 स्केलर है तो वैसे ही रखते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं रूट ऑफ fx का फॉर्मूला। सो रूट ऑफ fx का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ fx, दैट इज 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ fx। तो fx का डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट d बाई डी एक्स ऑफ दिस इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज विल गिव अस 1 अपॉन 4 टाइम्स रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये टर्म। सो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 8x माइनस एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4 टाइम्स एक्स रेज टू 3। अब न्यूमरेटर से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर देते हैं, तो बचा हमारे पास है द टर्म दैट इज रिमेनिंग विथ अस इज, हियर न्यूमरेटर हमने 4 कॉमन लेके कैंसिल किया है, तो बचा हमारे पास है यहाँ पे 2x माइनस एक्स रेज टू 3 होल अपॉन डिनोमिनेटर में बचा है रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। नाउ इफ यू लुक एट दिस टर्म f डैश ऑफ x, अगर देखते हैं तो न्यूमरेटर में x और कॉमन आ रहा है, और डिनोमिनेटर में भी देखेंगे तो डिनोमिनेटर ऑल्सो यू कैन टेक x कॉमन। सो लेट्स टेक द टर्म कॉमन, न्यूमरेटर से हमने x कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास है 2 माइनस, हियर वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये जो रूट के अंदर है वहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और रूट के बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा x इंटू दिस इज रूट ऑफ दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे जो हमने किया था, रिमेंबर हियर वी हैव टेकन x इनसाइड, सो नाउ हियर वी हैव टेकन x आउटसाइड। अब x कैंसिल करने के बाद बचा हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, हियर वी आर हैविंग रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा f डैश ऑफ x, वी आर इंटरेस्टेड इन f डबल डैश ऑफ x, तो हम f डबल डैश ऑफ x भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब f डबल डैश के लिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे u अपॉन v फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर
into this is derivative of numerator, so that is derivative of 2 becomes 0, minus of x square का derivative हो जाता है minus 2x, minus into numerator as it is, that is 2 minus x square as it is, into derivative of the denominator. तो denominator का derivative root of 4 minus x square का derivative 1 upon 2 times root of 4 minus x square. अब हमें चाहिए है डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अब हो जाता है दैट वैल्यू इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस ऑफ 2x up and whole upon you will get this is root of 4 minus x square whole square. अब कैलकुलेशन करते हैं. अब क्या करते हैं, इफ यू लुक एट द टर्म हियर यू आर हैविंग 2x, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, राइट. सो वी हैव डन द कैंसिलेशन. न्यूमरेटर में if you look at there is a term over here, so let's take the LCM in the numerator. So multiplication will give us this is 4 minus x square multiply by here we are having minus 2x. अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, so that value is the remaining term is plus this is 2 multiply by x हो जाएगा 2x minus x into x square will give us x cube whole upon denominator the term is रूट का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा. अब बचा क्या हमारे पास, लेट्स ओपन अप द ब्रैकेट. सो हियर वी आर लेफ्ट विथ, ये हो जाता है माइनस ऑफ 8x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस, सो दिस इज प्लस 2 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस दिस इज 2x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब कैलकुलेशन करते हैं न्यूमरेटर में, तो ये वैल्यू हो जाता है हियर दिस इज 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल गिव अस एक्स क्यूब, यहाँ पे है माइनस 8x प्लस 2x तो हो जाता है माइनस 6x. डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया हमारा f डबल डैश ऑफ x. अब हम देखते हैं हमें f को क्या करना था. हमारा जो फंक्शन था वी वांटेड द एरिया शुड बी मैक्सिमम. सी हियर वी आर गिवन द एरिया शुड बी लार्जेस्ट. लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब हमारा ये जो एफ एक्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए. तो मैक्सिमम के कंडीशंस देखते हैं क्या क्या थे. सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ for maximum value of fx we should have f dash of x must be equal to 0. अब f dash तो हमने निकाला हुआ है. what was f dash? f dash हमने लिखा था the f dash was 2 minus x square divided by root of 4 minus x square. so put कर देते हैं यहाँ पे in this our f dash of x. so that value is going to give us, so therefore you get the value is 2 minus x डिवाइड बाय यहाँ पे है रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमें मिल जाता है देयरफॉर यू गेट sorry here it was x square, right? this was x square, so here it is x square. So 2 minus, so therefore you get 2 minus x square is equal to 0 giving us the value. अब हमें मिल जाता है therefore we get x square is equal to 2. अब x क्या है, लेंथ है, तो अगर हम रूट ले लेंगे तो इट हैज टू बी ओनली पॉजिटिव रूट, सो दैट हैपेंस टू बी रूट ऑफ 2. तो x का वैल्यू हमें रूट 2 मिला. अब ये हम f डबल डैश ऑफ x के अंदर पुट कर देते हैं. सो therefore you can say f डबल डैश ऑफ रूट 2. f डबल डैश ऑफ रूट 2 क्या हो जाएगा, f डबल डैश हमारे पास यहाँ पे है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं x इज इक्वल टू रूट 2. सो दिस इज रूट 2 क्यूब माइनस 6 इंटू रूट 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर. सो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू हो जाता है रूट 2 का क्यूब हो जाता है 2 रूट 2 माइनस दिस इज 6 रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4 माइनस 2. सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 हो जाता है माइनस 4 रूट 2 डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास बचता है 2.
सो अगर हम इसको देखें, इफ यू लुक एट द टर्म, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू लुक एट द टर्म, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है, नेगेटिव साइन आ गया है मतलब ये है लेस देन 0। तो हमें मिला यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ √2 इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है, देन वी कैन से दैट देयरफॉर यू कैन से एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ इज मैक्सिमम, therefore f is maximum when x is equal to √2। अब x का वैल्यू तो हमें √2 मिला है, लेकिन हमें y का भी वैल्यू चाहिए है। तो y का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे था, हमने लिया था y is equal to 1/2 times √4 minus x square। So let's use it over here। So and you can say y is equal to, ये हो जाएगा 1/2 times √4 minus x square। x square मतलब √2 का स्क्वायर, राइट। सो √2 का स्क्वायर मतलब होता है 2। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू, ये हमें मिला √2 डिवाइड बाई 2 एंड √2 डिवाइड बाई 2 इज 1/√2। So now we have got the value of x and we have got the value of y. So therefore we have got what is the length of our rectangle and what is the breadth of our rectangle. So hence we can say the area of rectangle is maximum, or you can say that is the highest area when its length is लेंथ हमें मिला है x का वैल्यू, लेंथ इज √2 यूनिट्स, क्योंकि ये यूनिट्स में दिया, अगर सेंटीमीटर में दिया होता सेंटीमीटर में लिखते, मीटर में दिया होता तो मीटर में लिखते। सो दैट इज √2 and breadth is 1/√2 units and done. I hope you have understood the sum. So let's look at the sum one more time students. अब अगर हम ये सम देखें तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में हमें दिया था वी वांट अ रेक्टेंगल विच इज इनसाइड अ सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल के बारे में हमें दिया था लेंथ इज इक्वल टू, इट्स रेडियस इज इक्वल टू 1। सो वी हैव टेकन दिस फिगर। अब इसके अंदर हमें और एक चीज दिया था कि उसके 2 वर्टेक्स है वो डायमीटर के ऊपर है, तो हमने एक वर्टेक्स लिया A, दूसरा वर्टेक्स लिया B, and we have considered the length is equal to x and the breadth is equal to y of the given rectangle। अब ये रेक्टेंगल में हमें पता है the length are opposite sides are equal, तो हमें मिला AB is equal to DC is equal to x, और उसी तरह से BC is equal to AD is equal to y। अब इतना करने के बाद हमने क्या किया, जो सेंटर था, ये सेंटर से लेके जो डायगोनल के ऊपर, जो उसके सेमी सर्कल के ऊपर जो वर्टेक्स थे, उसको हमने ज्वाइन कर दिया। सो व्हेन वी हैव जॉइन दिस वर्टेक्स वी हैव गॉट OC एंड OD। अब OC और OD अगर देखेंगे तो वो रेडियस है, तो हमें पता है उसका लेंथ हो जाता है 1। आफ्टर दैट वी नो दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो सिंस दे आर सिमिलर, or you can say they are equal, they are congruent triangle, so we can say that OA is equal to OB। लेकिन OB कैसा है, अगर OA का वैल्यू और OB का वैल्यू सेम है तो ये पूरा डिस्टेंस जो था वो डिस्टेंस का हाफ हो गया OB। सो वी हैव टेकन OB इज इक्वल टू हाफ टाइम्स AB। AB का वैल्यू हमने x लिया था तो हमें मिला OB इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2। देन वी कम टू द फिगर अगेन, और हमने ये ट्राइंगल कंसिडर किया। अब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। अब हमने सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। वी वांटेड द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि हमारा फंक्शन एक ही वेरिएबल में चाहिए, इट शुड बी इन वन वेरिएबल, आइदर यू टेक x और यू टेक y। तो हमने y का वैल्यू फाइंड आउट किया। y का वैल्यू हमें मिला 1/2 टाइम्स √4 माइनस x स्क्वायर।
now we have considered the area of the rectangle. area of the rectangle हमें पता है x into y होता है, तो y का वैल्यू हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट किया. अब ये जो पूरा फंक्शन हमें मिला, when we have got the function, the whole function is in x, तो हमने उसको कंसिडर किया fx. तो हमें मिला हमारा फंक्शन, we have found out our function. Then we started with the steps of finding the maxima and minima. तो हमारा स्टेप था फाइंडिंग, उसके बाद हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स हमें मिला 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. देन वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिला एक्स क्यूब माइनस 6x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमें चाहिए था हमारा एफ एक्स जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो हमारे कंडीशन मैक्सिमम के लिए होते हैं एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0 और हमें मिलना चाहिए एफ डबल डैश ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, जो हमें एक्स का वैल्यू मिला है वो लेस देन 0 होना चाहिए. तो हमने एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया, उससे हमें एक्स के वैल्यूज मिले. सो एक्स का वैल्यू हमें मिला √2. we have substituted this √2 value in f double dash of x. फिर हमने चेक किया ये पॉजिटिव मिला या नेगेटिव मिला, तो ये नेगेटिव मिला बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन. सो वंस यू हैव गॉट दिस नेगेटिव वी कैन से दैट f इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू √2. अब हमें y का भी वैल्यू चाहिए था, तो y के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. y का वैल्यू था 1/2 टाइम्स रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. x का वैल्यू पुट करने के बाद हमें y का वैल्यू मिला. सो वी हैव गॉट द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज √2 एंड हुज ब्रेड्थ इज 1/√2, so that the area of this rectangle will be maximum. So ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14. I hope you have understood this. Now remember students, the only thing you should remember over here is the method. अब मेथड में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. एक बार एफ एक्स मिल गया तो बाकी पूरा सम आप कर सकते हो बाय सेम मेथड. Let's take another question now. Here we are looking at sum number 15. The question is, an open cylindrical tank whose base is a circle is to be constructed of metal sheet so as to contain a volume of pi a cube cubic centimeter of water. Find the dimensions so that the sheet required is minimum. अब देखते हैं क्या दिया है और हमें क्या करना है. सबसे पहले हमें दिया है हमारे पास एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस तरह का सिलेंडर दिया हुआ है जिसका कि ऊपर का जो मुंह है वो पूरा ओपन है. बेस इज कवर्ड, लेकिन ऊपर ये जो है वो ओपन है. अब ये किससे बनाया है, तो एक शीट से बनाया हुआ है, मेटल शीट से बनाया हुआ है. ओके, और हमें क्या करना है, ये मेटल शीट जो है वो कम से कम यूज करना है ये रेक्टेंगल बनाने के लिए, ये सिलेंडर बनाने के लिए. अब ये सिलेंडर बनाने के लिए हमें और एक कंडीशन दिया है. कंडीशन क्या दिया है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए. इसका वॉल्यूम जो है वो पानी अगर हम उसके अंदर डालें तो वो पानी का वॉल्यूम होना चाहिए. इट शुड कंटेन अ वॉल्यूम ऑफ पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर एंड वी वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ दिस सिलेंडर. तो अगर हम सिलेंडर लेते हैं तो इसका एक बेस होता है और हाइट होता है. सो हमारा ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का बेस का जो रेडियस है उसको हम कंसिडर करते हैं x, और हम इसका जो हाइट है उसको हम कंसिडर करते हैं h. Okay, so this is our cylinder. So let's write down what all things we have considered. So let in the solution we are considering, let x be the radius of the base, h be the height of the
cylinder. Height, and we need also volume. So let us take the volume also. And the volume we are taking is V. V be the volume of the cylindrical टैंक. अब सिलेंड्रिकल टैंक के बारे में हमारे पास वॉल्यूम के बारे में दिया हुआ है. सो नाउ वी आर गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर is pi a cube cubic centimeter, and we also know what is the volume of the cylinder. So let's use the formula over here. We can say that we are given volume V is equal to pi times a cube, and we also know the formula. Is the formula of volume of a cylinder is pi times रेडियस स्क्वायर. तो रेडियस तो हमने लिया है x स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल टू पाई टाइम्स ए क्यूब. अब अगर हम ये इक्वेशन देखें, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यहाँ पे x वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है. तो हमें या तो फंक्शन x में चाहिए या h में चाहिए. सो वी वांट द फंक्शन इन x. तो हम यहाँ पे h का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो देयरफॉर यू कैन से दैट h इज इक्वल टू पाई टाइम्स a क्यूब डिवाइड बाय दिस इज पाई टाइम्स x स्क्वायर. कैंसिलेशन करने के बाद हमें मिलता है h इज इक्वल टू वी गेट a क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर. अब ये तो हो गया हमारा h का वैल्यू. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब व्हाट डू वी वांट, दैट वी हैव टू सी. Now we want to find the dimensions of the sheet required should be minimum. तो हमें चाहिए है dimension of the sheets. अब ये sheet कैसे बनेगा? Let us see how we are going to use it. Now suppose we are given a metal sheet. तो ये हमारा metal sheet दिया हुआ है. अब ये metal sheet में हम कटिंग करेंगे और ये सिलेंडर बनाने वाले हैं. अब ये सिलेंडर को अगर हम बीच में से काटे, सपोज द सिलेंडर इज गिवन टू अस इन दिस वे. ये रहा हमारा सिलेंडर, राइट. सो दिस इज अ सिलेंडर. इन द अपर साइड एंड इन द लोअर साइड वी नो बोथ ऑफ देम आर सर्कल्स. हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं. वी आर जस्ट ओपनिंग अप. तो जैसे ही हमने ये सिलेंडर को ओपन किया, यू आर गोइंग टू गेट अस रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल मिलेगा हमें, जिसका के लेंथ अगर हम देखें तो ये लेंथ तो यहाँ का लेंथ हो जाएगा. जैसे हमने इसको ओपन किया तो ये पूरा जो है ये इसका लेंथ बन जाएगा. ये सिलेंडर का जो भी हाइट है दैट इज नथिंग बट द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो अगर हमें चाहिए है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, तो लेंथ तो हमें मिलेगा इसका सरकमफेरेंस, और ये सरकमफेरेंस के लिए हमने इसका रेडियस तो लिया है x, राइट. सो अगर हमें चाहिए है सरकमफेरेंस ऑफ द, यू कैन से सरकमफेरेंस ऑफ द बेस. सो सरकमफेरेंस ऑफ द बेस हो जाता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय x. और उसी तरह से अगर हम देखेंगे इसका हाइट, इसका जो हाइट है वो इसका ब्रेथ हो गया है. सो हाइट ओवर हियर इज टेकन एज द ब्रेथ ओवर हियर. सो हाइट हमने लिया है h, तो इसका ब्रेथ हो जाएगा h. तो ये तो हो गया इसका ये वाला कवरिंग, ये बाहर वाला कवरिंग. लेकिन सिलेंडर हमारा कैसा है, नीचे से बंद है और ऊपर से ओपन है. तो नीचे से अगर ये बंद है तो यहाँ पे एक सर्कल बना है. सो वी वांट अ सर्कल ऑल्सो, हमें एक सर्कल भी चाहिए है. सो नाउ इफ यू लुक एट दिस सर्कल, तो जो हमारा ये शीट है उसमें से हमें ये एक रेक्टेंगल कट करना है. तो ये रहा उसका एरिया, ये इतना कट करना है हमें, और हमें ये एक सर्कल भी कट करना है. और सर्कल का भी एरिया हमें चाहिए है, ये रेक्टेंगल का भी एरिया हमें चाहिए. ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलता है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ आवर given cylinder, and which is open on one side. So we can write the term as S is the surface area. So let us consider, let S be the surface area of the open cylinder. तो हम सरफेस एरिया के बारे में लिख सकते हैं S इज इक्वल टू,
पहले तो हमारे पास है ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का अगर एरिया हमने देखा तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ये एरिया ऑफ द सर्कल भी हमें प्लस करना है। सो एरिया ऑफ द सर्कल हो जाता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस हमने लिया है एक्स, सो दैट इज एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये वाले इक्वेशन में h का वैल्यू हमारे पास है, विल पुट द वैल्यू ऑफ h ओवर हियर। सो एज वी पुट द वैल्यू ऑफ h ओवर हियर, ये वैल्यू हो जाएगा, दिस टर्म इज गोइंग टू बी, दिस इज 2 पाई x मल्टीप्लाई बाय h का वैल्यू है a क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस हियर वी हैव पाई इंटू एक्स स्क्वायर। कैंसिलेशन करने के बाद हमें मिलता है s इज इक्वल टू, s हमें मिला 2 पाई a क्यूब डिवाइड बाय x प्लस पाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमारा ये जो सरफेस है, ये जो हमने सरफेस यहाँ पे दिया है, ये क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ताकि जो हमारा शीट यूज होगा वो मिनिमम होगा। सो नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ s। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी आर डिफरेंशिएटिंग s विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिल जाता है ds डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 2 पाई a क्यूब, तो स्केलर है वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये पाई तो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेट अस राइट इट प्रॉपर्ली। तो ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं -2 पाई a क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 2 पाई इंटू एक्स। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। विल अगेन डिफरेंशिएट दिस, तो ये हो जाता है d2s डिवाइड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2 पाई a क्यूब वैसे ही रहेगा एज ए स्केलर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 डिवाइड बाई x रेज टू 3 प्लस 2 पाई विल रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x बिकम्स 1। तो इसको अगर हम ठीक से लिखते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है 4 इंटू पाई a क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस हियर वी हैव 2 पाई। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब हमारा कंडीशन क्या है, वी वांट द सरफेस एरिया टू बी मिनिमम। सो फॉर सरफेस एरिया you can say S to be minimum। हमारा कंडीशन है द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dx डिवाइड बाय dx शुड बी इक्वल टू 0। सो ds डिवाइड बाय dx का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, लेट्स सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। तो ये हमें मिलता है -2 पाई a क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई x इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमें मिलता है 2 पाई -2 पाई a क्यूब प्लस दिस इज 2 पाई x क्यूब इज इक्वल टू 0। राइट, पूरे इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। सो let us take one of the term to the other side, so that is going to give us 2 pi x cube is equal to 2 pi a cube। so 2 pi cancel करेंगे, हमें मिलता है x cube is equal to a cube। अब x का वैल्यू हमें मिल जाता है, द वैल्यू ऑफ x is equal to a। अब x is equal to a हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं। सो सिंस वी नो दैट d2s डिवाइड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास है 4 पाई a क्यूब डिवाइड बाय दिस इज x क्यूब प्लस 2 पाई। सो विल जस्ट पुट x is equal to a over here, so that is going to give us d2s डिवाइड बाय dx स्क्वायर एट x is equal to a is equal to, ये हो जाएगा 4 पाई a क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब प्लस दिस इज 2 पाई। सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये a क्यूब कैंसिल हो गया, 4 पाई प्लस 2 पाई विल गिव अस 6 पाई विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमें मिला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। सो इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 वी कैन से S इज मिनिमम when x is equal to
ए। तो x का वैल्यू हमें मिला। अब x का वैल्यू हम h में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द हाइट आल्सो। सो देयरफॉर यू कैन से सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में हमारे पास h का वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू दिस इज a cube divided by x square. So putting the values over here, so that value is equal to a cube divided by a square and the value is equal to a. So when x is equal to a हमने यहाँ पे substitute किया, हमें मिला height is also equal to a. So we can say that hence the quantity of metal sheet is minimum when radius is equal to height is equal to a centimeter of the cylinder. So that is done. I hope you have understood this. तो सबसे पहले यहाँ पे whatever is the sum given to us, most important thing is finding out the function. जैसे ही हमें function मिल जाता है, the procedure is same, right? Steps वही हमने use किए हैं, सिर्फ ये find out करना आपको आना चाहिए. So for that many word problems are there. We'll take few more. I think students will stop over here for the day. Remaining sums of this exercise we'll see in the next class. Have a nice day and thank you.